We are doing this chapter called electromagnetism, right? ये चैप्टर पढ़ने से पहले आप लोगों को 9th स्टैंडर्ड का कुछ चीज़ मालूम होना चाहिए. सो दिस इज फर्स्ट पार्ट, दिस इज फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड. व्हाट यू शुड नो. और 9th स्टैंडर्ड में से इस पार्ट में से क्वेश्चन आ सकता है और आया भी है, राइट? इफ दिस इज अ मैग्नेट, देयर इज अ फील्ड अराउंड दिस मैग्नेट. Okay, there is a field around this magnet which is called a magnetic field, and this magnetic field is represented with the help of these lines, correct? With the help of these lines. Okay, कल हम लोगों ने इसको नॉर्थ मार्क किया था, इसको साउथ. आज उल्टा करते. दिस वी विल मार्क एज नॉर्थ and this as south. Direction is very important. Today when I will take some board questions, okay, previous year board question and some important question, you will realize it, okay? The direction of this magnetic field lines. See, magnetic field lines are different and magnetic field is different. We understand a magnetic field. Magnetic field is a two-dimensional thing. It is a region. Magnetic field we understand with the help of the magnetic lines. If we have to explain the direction, behavior of the magnetic field, that is explained with the help of the magnetic field lines. Okay, so there is a magnetic field around a magnet, and this magnetic field can be understood with the help of the magnetic field lines. Okay, this is my magnet. North pole and south pole. Now what about this magnetic field line? So these lines emerge out from the north pole, okay, and goes into the south pole. Exit is from north pole and entry is the south pole. So this is the direction पर ज़रा ज़्यादा ध्यान देना. Fine. और मैग्नेट के अंदर कैसे जाएगा? It is a closed circular loop in a closed pattern. Okay, तो अंदर इसका डायरेक्शन ये होगा, ठीक है, लाइक दिस. अंदर ये साउथ टू नॉर्थ होगा, राइट? हाँ, सो दिस वाज वन प्रॉपर्टी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस एंड इन अ सर्कुलर पैटर्न. ओके, सर्कल के शेप में होगा और कंटिन्यूअस होगा, ओके, विदाउट एनी ब्रेक, राइट? हैव यू अंडरस्टूड दिस? ये पॉइंट को अंडरस्टैंड करना, आगे का आप लोग अच्छे से समझ पाओगे, राइट? Now these are magnetic field lines. Okay, these are magnetic field line. What is the direction of the magnetic field? Direction of the magnetic field. So you can understand the direction of the magnetic field. Okay, at what point? At this point. तो क्या करो? Tangent draw करो. Tangent. Okay, arrow तो इस direction में, same direction में. Tangent at that point will give you a direction of a magnetic field. Magnetic field is denoted by symbol B, and it is a vector quantity. It has a direction, and direction कैसे find out करोगे? तो magnetic field line पर point लो and tangent at that point will give you a direction of the magnetic field, right? और एक बात कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस वन अनदर. एक बोर्ड में क्वेश्चन आया था, दे विल नेवर क्रॉस ईच अदर. व्हाई? बिकॉज वी हैव स्पोकन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. इफ आई टेक फर्स्ट कर्व, सो tangent is drawn here, okay, and if I take second curve, tangent can be drawn in this direction. So there are two magnetic fields. Okay, if they line cross each other, there are two magnetic fields, which is not possible. Hence, magnetic field lines, very important point, magnetic field lines never cross one another. जो भी मैं बोल रहा हूँ, वॉट एवर वर्ड्स, वो सारा ध्यान रखो. ओके, इफ़ यू वॉन्ट यू कैन राइट अलॉन्ग विथ मी. रिविजन के वक्त ये इसको ही रिवाइज करना, सारा चैप्टर आपको याद आ जाएगा, क्वेश्चन भी. हाँ, सो आई हैव सीन थरोली कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, टेक्स्ट बैक क्वेश्चन कैसा है. हाँ, और अकॉर्डिंगली आई एम टीचिंग इन अ सेम पैटर्न. हाँ, तो ये सब नया कुछ नहीं मिलेगा व्हेन यू सॉल्व क्वेश्चन आंसर. इज इट क्लियर? और क्या होता है मालूम है?
Now strength of the magnetic field. Okay, strength of the magnetic field. How do you find out the strength of the magnetic field? Strength of magnetic field, that is vector quantity B, right? So what we do is we select a unit area. Suppose ये 1 unit area 1 centimeter by 1 centimeter by 1 centimeter का मैंने क्या किया, area select किया. Okay, I have selected here and I have selected it here, right? तो उस एरिया में से जितने ज़्यादा मैग्नेटिक लाइंस जाएंगे थ्रू दैट 1 यूनिट एरिया, उतना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, राइट? सो व्हाट आई फाइंड इज दैट अगर मैं नॉर्थ पोल या साउथ पोल टूवर्ड्स द पोल इफ आई सिलेक्ट दिस एरिया, तो यहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ जो है लाइंस पास होते हैं. ओके, सो द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट इज हाईएस्ट एट द पोल्स, इज हाईएस्ट एट द पोल्स. और अगर आप लोग दूर दूर जाओगे, बहुत दूर जाओगे, ओके, बहुत दूर जाओगे, एंड इफ़ यू सिलेक्ट द एरिया, व्हाट यू विल ऑब्जर्व इज दैट, बहुत दूर जाओगे तो ये कर्व बढ़ते जाएगा. एंड इफ यू फोकस ऑन दिस 1 यूनिट एरिया, इफ यू आर फोकसिंग ऑन दिस 1 यूनिट एरिया, तो यू विल गेट मैग्नेटिक लाइन्स विच आर ऑलमोस्ट पैरेलल टू वन अनदर, ओके. एंड मे बी दे कैन बी ऑफ, अगर 3-4 होंगे तो दे विल बी इक्विडिस्टेंट, ओके. तो यहाँ पर जो है दिस इंडिकेट इट इज़ अ वीक मैग्नेटिक, ओके. मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है वो वीक है. सिलेक्ट अ यूनिट एरिया, सपोज ये एरिया है, ओके. इफ़ यू जूम इन टू दिस डायग्राम, सो मैनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स यू कैन सी. तो ये एक एरिया है और ये वाला एरिया. सपोज इफ़ यू टेक 1 यूनिट एरिया, लेट अस से ये मैंने 2 सेंटीमीटर का लिया, 2 सेंटीमीटर, ओके. 2 by 2 मतलब 4 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया. एंड सपोज इफ आई टेक एग्जैक्टली 4 स्क्वायर सेंटीमीटर का एरिया ईयर ऑल्सो 2 by 2 सेंटीमीटर वाला, ओके. सो व्हाट आई सी इज यहाँ पर बहुत सारे लाइन्स हैं, ओके. यहाँ पर बहुत सारे लाइन्स है, यहाँ पर बहुत थोड़े से लाइन है, ओके. 3 to 4 लाइन्स है. सो व्हाट आई कैन से हियर, मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग हियर एंड वीक ओवर हियर. अगेन दिस इज ऑल्सो बोर्ड क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक फील्ड एज यू गो अवे फ्रॉम द मैग्नेट, दिस मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वीक हो जाता है. नाउ लुक एट दिस पॉइंट, कैन यू सी दिस पॉइंट, नॉर्थ पोल. You will see so many magnetic field lines are crowded over here. ये line draw किया, you can see a dark grey patch over here or a black patch over here. मतलब at the poles, that is north pole and the south pole, magnetic field का strength जो होता है that is maximum. That is the maximum. And as you go away from this magnet, okay, as you go away from the magnet, ये magnetic strength जो होता है, magnetic field का strength जो होता है, that keeps on decreasing. Okay, again a board question. और एकदम दूर अगर जाओगे तो you will see that almost in this unit area, this magnetic field line will almost appear to be parallel. ओके, दे विल अपीयर टू बी पैरेलल. और पैरेलल है लाइन मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी वीक. समझ में आ रहा ना. दीज आर दी थिंग्स यू शुड नो फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड. 10th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा, तो याद देखो इसमें हैंस अर्स्टड, ओके, ये नाम का साइंटिस्ट था. इनिशियली इलेक्ट्रिसिटी वाज नॉट इन अ सेम फॉर्म एज वी यूज टुडे. आप ये सेल देख रहे हैं आप लोग, बहुत सारे सेल है यहाँ पर, कैन यू सी दिस, ओके. इन सेल को यूज करके क्या किया है, एक वायर जो है वो कनेक्ट किया, ओके. ये वायर है कनेक्टेड टू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल. एंड अर्स्टड accidentally happened to take a compass near this wire carrying a current, okay. वायर कैरिंग अ करंट या मूविंग चार्ज, हम लोग मूविंग चार्ज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, हीट को भी हम लोग क्यू से ही रिप्रेजेंट करते थे, ओके. टेस्ट यूनिट चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल क्यू. तो अगर कोई मूविंग चार्ज होगा, ओके. सो वी ऑल नो दैट ये चार्ज मूव करता है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू दी नेगेटिव टर्मिनल. इसको कंपेयर किसके साथ किया था, विद द वाटर. एज वाटर फ्लो फ्रॉम दी हायर लेवल टू अ लोअर लेवल, तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इज कंसिडर्ड टू बी हायर लेवल एंड नेगेटिव टर्मिनल इज कंसिडर्ड टू बी अ लोअर लेवल. एंड चार्ज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू दी नेगेटिव टर्मिनल, दैट इज हायर लेवल टू अ लोअर लेवल. So when Ørsted by mistakenly accidentally happened to take a compass near a wire or a conductor carrying a current,
तो ही ऑब्जर्व देर वॉज अ डिफ्लेक्शन इन द कंपस एंड ही वॉज परप्लेक्सड, ही वॉज कन्फ्यूज, अरे ये डिफ्लेक्शन कहाँ से आया, ओके, बिकॉज व्हाट द क्वेश्चन, ओके, इमेजिन कि उस वक्त ये आंसर मालूम नहीं है मैग्नेटिक फील्ड वगैरह, ओके, दिस इज अ कंडक्टर और अ वायर विच इज कैरिंग अ इलेक्ट्रिसिटी। जब मैं यहाँ कंपस साइड में लेकर जाता हूँ तो आई सी अ डिफ्लेक्शन, आई सी अ डिफ्लेक्शन। सो वाई साइंटिस्ट वर कन्फ्यूज कि इसमें से, इस कंडक्टर में से अगर चार्ज फ्लो होता तो वो कैसे फ्लो होता, डज इट फ्लो थ्रू दिस कंडक्टर, कि ये आसपास क्या है, आसपास क्या है, कि व्हेन वी टेक अ मैग्नेट इन दिस, इन द एरिया अराउंड द वायर और अ कंडक्टर विच इज कैरिंग अ चार्ज, उसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है। ओके, सो दे वर वेरी वेरी कन्फ्यूज। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए एंड देन साइंटिस्ट कम टू अ सर्टन कंक्लूजन। व्हाट इज अ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट? सो एज आई टोल्ड यू, in this chapter we are going to establish a relationship between electricity and the magnetic field. Okay, so if this is a conductor which is carrying a electric current, या कोई चार्ज है, you can imagine a charge जो मूव कर रहा है, तो मूविंग चार्ज और अ कंडक्टर कैरिंग अ इलेक्ट्रिक करंट, देयर इज ऑलवेज अ मैग्नेटिक फील्ड, देयर इज ऑलवेज अ मैग्नेटिक फील्ड। क्या ये मैग्नेटिक फील्ड सेम मैग्नेटिक फील्ड है जो मैग्नेट का होता है? तो इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च हो गए, ओके, एंड लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट कि ये मैग्नेटिक फील्ड होता है विच इज मैग्नेट, वी ऑल नो, वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट अ मैग्नेटिक फील्ड। पूरा का पूरा थियरी जो है मैग्नेटिक फील्ड का, वो कैसे एक्सप्लेन किया गया है, विद द हेल्प ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सो सेम थिंग वी कैन एक्सप्लेन हियर। फिर बाद में इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर वगैरह जो इन्वेंट हुआ यूजिंग दिस नॉलेज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो दिस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ अ करंट। ओके, सो इफ करंट, ओके, समझो इसके अंदर से जो है कोई चार्ज फ्लो हो रहा है, ओके, या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तो देर इज अ मैग्नेटिक फील्ड। कैसे पता चलता है मैग्नेटिक फील्ड है? ओके, तो टेक अ कंपस नियर दिस वायर, ओके, नियर दिस वायर, यू विल सी दैट ये अस्टड ने क्या किया है, जिसमें से जिस वायर में से करंट फ्लो हो रहा है उसके नीचे कंपस रखा। जब ये स्विच ऑफ था, करंट वॉज स्विच ऑफ, मैग्नेट वॉज पॉइंटिंग इन अ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, बट जैसे ही बटन को ऑन किया एंड करंट वॉज अलाउड टू फ्लो, चार्ज वॉज अलाउड टू फ्लो थ्रू दिस वायर, तो मैग्नेटिक नीडल में क्या दिखाई दिया, एक डिफ्लेक्शन दिखाई दिया। एंड डिफ्लेक्शन मीन्स इस कंपस में क्या दिखाई दिया, तो डिफ्लेक्शन, एंड दिस डिफ्लेक्शन मीन्स देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दिस। इज इट क्लियर? हाँ, ये समझ में आया ना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ अ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मैग्नेट का इफेक्ट शो कर रहा है। ओके, अगर इलेक्ट्रिक करंट ऑन नहीं है, ओके, इफ इट इज स्विच्ड ऑफ, so when current is not moving, when charge is not moving, when current is not passing through a wire or a conductor, when charge is not moving, then electricity is not showing a behavior like a magnet. Only when electric current is flowing through a wire or a charge is moving, only then you observe what अ मैग्नेटिक इफेक्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आप लोगों को ये भी पता होगा, ओके, कि अगर आप लोगों ने लाइव वायर को अगर छू लिया तो आप लोगों को कुछ एक झटका जैसा लग जाता, ओके, यू एक्सपीरियंस सम काइंड ऑफ फोर्स। और कभी आप लोगों ने सुना भी होगा कि कुछ लोग इलेक्ट्रिक डिवाइस को जो है चिपक जाते हैं, दे स्टिक टू दैट, ओके, स्टिक होना, हाँ, अट्रैक्ट करना, रिपल करना, these are all, okay, magnetic properties, okay, these are the properties of the charges, right? Now see these notes, अगर आप लोग टेक्स्ट बुक देखोगे तो टेक्स्ट बुक का लैंग्वेज जो भी है, वॉट एवर, ओके, आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज टेक्स्ट बुक, लेकिन वो थोड़ा सा हैवी टू डाइजेस्ट है। तो व्हाट आई हैव डन इज, उसको थोड़ा सा मैंने चेंज किया एंड आई हैव चेंज द नोट्स एंड प्रेजेंटेड इन सच अ वे दैट आपका एग्जाम का भी प्रिपरेशन होते रहेगा। ओके, सो एग्जाम में भी जैसे क्वेश्चन आते हैं उस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। ओके, नाउ सी हियर, नाउ द अरेंजमेंट ऑफ द एक्सपेरिमेंट का अरेंजमेंट कैसा था? कैन यू सी दिस लाइव वायर? ओके, वायर ए बी, ये वायर ए बी एंड कंपस वॉज प्लेस्ड, कंपस, यू विल सी दैट कंपस वॉज प्लेस्ड बिलो द वायर। जैसा यहाँ आप लोग इनका ये पिक्चर देख रहे हो, ओके, कंपस इज प्लेस्ड बिलो द वायर।
और देखो कंपास इज पॉइंटिंग इन अ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. कैन यू जूम इन टू दिस डायग्राम? ओके, दिस कंपास इज पॉइंटिंग इन अ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. वायर को भी हम लोगों ने नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रखा सो दैट वी कैन टेक अ रीडिंग, वी कैन नोट डाउन द रीडिंग्स. ओके, वायर ए बी लाइंग इन अ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. तो कंपास को रखा और हमारा टेबल या हमारा वायर भी हम लोगों ने ऐसे ही अरेंज किया कि इन सच ए वे दैट ओके चार्ज विल फ्लो फ्रॉम पॉइंट ए टू बी. ये याद रखने का, वी डोंट लर्न दिस इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी लर्न दिस इन टर्म्स ऑफ अ चार्ज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू दी नेगेटिव टर्मिनल. तो इस पूरे चैप्टर में वेन एवर यू हैव टू शो द डायरेक्शन ऑफ द करंट, आप लोग पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ही शो करेंगे, बिकॉज दैट इज द कन्वेंशनल चार्ज. राइट ना, इस डायरेक्शन के बारे में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में बहुत ज़्यादा डिटेल में बात कर चुके हैं. सो देर इज नो पॉइंट टू रिपीट दोज पॉइंट अगेन एंड अगेन. क्लियर? सो इनिशियली इट इज केप्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, कनेक्टेड टू अ बैटरी थ्रू अ रियोस्टैट. सो बैटरी है ना रियोस्टैट. रियोस्टैट किस लिए? क्योंकि रियोस्टैट से हम लोग क्या करेंगे कि करंट जो है उसका स्ट्रेंथ जो इंक्रीज करेंगे डिक्रीज करेंगे. ओके, मे बी करंट को हम लोग 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर ऐसे अलग अलग स्ट्रेंथ में करंट को जो है ओके लेस करंट, लार्ज करंट, अलग अलग करंट पर हम लोग अलग अलग रीडिंग्स लेंगे. ओके, या डिफ्लेक्शन को मेजर करेंगे, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड कि क्या रिलेशन है बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड. तो ये बेसिक रिलेशन है, आगे चलकर हम लोग इसमें और कॉम्प्लेक्सिटी लाते जाएंगे. ओके, क्योंकि आज हम लोग जो मशीन्स यूज़ करते हैं, मोटर जनरेटर यूज़ करते हैं, दे आर कॉम्प्लेक्स मशीन. सो वी आर स्टार्टिंग विद दिस ABCD. लेटर ऑन हम लोग इसमें जो है और डिटेल में पढ़ने वाले. राइट? हाँ, you will see that this key is open. Initially this key is open. So wire AB lying in a north-south direction and connected to a battery through a rheostat and tap key. Rheostat का function मैंने बताया to increase the quantity of current और to decrease the quantity of current. और tap key किस लिए होता है? To switch on or off the current. Initially तो ये off है. And a compass is placed below the wire. बाद में हम लोग इस कंपास का डायरेक्शन ओके बिलो है ऊपर भी लेकर देखेंगे कि क्या डायरेक्शन में क्या चेंजेस है. ओके, सो लिसन केयरफुली. नाउ दिस टॉपिक इज एज पर योर स्कोप ऑफ सिलेबस. इसमें से हर एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ सकता है. राइट? आई विल कीप दिस डायग्राम सो दैट ये डायग्राम और इसको हम लोग कंपेयर करेंगे. व्हेन की इज ओपन, ओके, जब करंट फ्लो नहीं कर रहा है, जब चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है, ओके, व्हेन की इज ओपन, तो व्हाट वी सी, द नीडल इज अ नीडल of the compass is in north south direction along with the earth's magnetic field. अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है ओके और ये कंपास का मैग्नेटिक फील्ड सेम है. तो व्हेन देयर इज नो चार्ज पासिंग ऑन, तो कंपास इज पॉइंटिंग इन अ नॉर्मल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. राइट? एंड व्हेन की इज क्लोज्ड, व्हेन करंट इज अलाउड टू पास, हम लोगों ने क्या देखा? देयर इज अ डिफ्लेक्शन. एंड विच डायरेक्शन दिस डिफ्लेक्शन इज इन? इट इज इन वेस्ट डायरेक्शन. ओके, तो मैग्नेटिक नीडल जो पहले नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में था, ओके, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में था. नाउ व्हाट वी सी, नॉर्थ इज हियर, साउथ इज हियर, वेस्ट ऊपर है और ईस्ट नीचे है. सो दिस डिफ्लेक्शन इज इन दी टुवर्ड्स दी वेस्ट डायरेक्शन. इज इट क्लियर? ओके, तो हम लोगों ने देखा देयर इज अ डिफ्लेक्शन एंड इन विच डायरेक्शन दिस डिफ्लेक्शन इज? इन वेस्ट. ये सब याद रखना पड़ेगा आप लोगों को, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा. तो व्हेन करंट इज रिवर्स, अभी हम लोगों ने क्या किया मालूम है? बैटरी को चेंज कर लिया. अर्लियर इट वॉज प्लस हियर ऑन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या था? माइनस था. हम लोगों ने वायर को निकाल दिया और रिवर्स ऑर्डर में लगाया. मीन्स करंट वॉज अर्लियर फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन. ओके, नाउ इट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन. ओके, करंट इज रिवर्स. तो हम लोग क्या देखते हैं कि डिफ्लेक्शन जो होता है दैट इज नॉट इन अ सेम डायरेक्शन. अर्लियर इज व्हाट वी सॉ दैट इट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द वेस्ट डायरेक्शन. ओके, नाउ इट इज डिफ्लेक्टिंग टुवर्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन. ओके, तो व्हेन वी रिवर्स अ पोलैरिटी ऑफ अ बैटरी, करंट का जो पोलैरिटी जो है वो अगर हम लोग रिवर्स कर देते हैं तो डिफ्लेक्शन भी अलग डायरेक्शन में चेंज हो गया. मतलब डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज़ अ डायरेक्शन. राइट? अब हम लोग क्या करते हैं, कंपास को ओके नीचे से उठाया. सी हियर in position A, this is below this conductor carrying a current. Can you see this diagram? अब कंपास को हम लोगों ने क्या किया? ऊपर लिया.
ओके कंपास को अगर नीचे से ऊपर लिया तो अगेन ये रीडिंग किया तो यहाँ वेस्ट में जा रहा था, तो यहाँ डिफ्लेक्शन वॉज इन ईस्ट, और यहाँ ईस्ट पर में था डिफ्लेक्शन, सो वी सॉ डिफ्लेक्शन वॉज इन द वेस्ट. आर यू गेटिंग इट? आर यू गेटिंग दिस? ओके नीचे से ऊपर लाया तो रीडिंग्स आर डिफरेंट. ओके सो दिस वॉज अ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय अस्टड. इसका इम्प्लीकेशन ओके इसका इस ऑब्जर्वेशन से क्या कंक्लूजन निकालते हैं वी विल सी दैट, बट आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एक्सपेरिमेंट. हैव यू अंडरस्टूड दिस एक्सपेरिमेंट? अभी देखो ये बोर्ड का ही क्वेश्चन है, बोर्ड का ही क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन. इन इंट्रोडक्शन मैंने बोला वी विल टॉक अबाउट इट लेटर ऑन, तो ये बोर्ड का ही क्वेश्चन है. देर आर 2 डायग्राम्स इन दिस पार्ट विच कैन बी आस्क्ड टू बी ड्रॉन. तो अभी हम लोग इस डायग्राम को भी प्रैक्टिस करने वाले. बी रेडी विथ योर पेंसिल एंड नोटबुक. कि एक चार्ज है, चार्ज मतलब क्या, वी कैन एज्यूम लाइक अ पॉइंट, एंड इफ दिस इज मूविंग, ये चार्ज अगर मूव कर रहा है, ओके ये चार्ज अगर मूव कर रहा है, ओके दिस इज चार्ज. लेट अस से आई एम टेकिंग अ टेस्ट यूनिट चार्ज, तो मैंने स्मॉल क्यू लिया. ओके स्मॉल कैपिटल क्यू इज अ टोटल चार्ज. एक यूनिट चार्ज लेते हैं, ओके टेस्ट यूनिट चार्ज 1, तो उसको स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं. और दिस इज अ कंडक्टर. ओके और ये कंडक्टर है, इसमें से क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, और से इन अदर वर्ड चार्ज फ्लो हो रहा है. वी ऑलवेज ट्राई टू एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ चार्ज. सपोज इफ this end is connected to positive terminal and this end is connected to the negative terminal. Okay so current will flow from positive direction to negative direction in this direction. Okay charge will flow, electron opposite direction में होता है, but we are going to use to show the direction. जब भी आप लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो you are going to show the direction of the conventional charge. Okay conventional मतलब from positive terminal to the negative terminal. ठीक है. अगर ये फ्लो हो रहा है ना तो इसके अराउंड में जो है, इसके अराउंड क्या होगा, इसके अराउंड जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड होगा. लिसन केयरफुली. अ मूविंग चार्ज के अराउंड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है. ओके इट इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड. ये 2D के जैसा एज्यूम मत करो, ये 3D के जैसा एज्यूम करो कि 3D स्पीयर. ओके अ मूविंग चार्ज, या तो इसमें से चार्ज फ्लो हो रहा है थ्रू दिस कंडक्टर. सो ये कंडक्टर में से अगर चार्ज फ्लो हो रहा है तो इसके अराउंड, ओके इसके अराउंड भी क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड होगा. ओके एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड द डायरेक्शन ऑफ करंट तो देख लिया हम लोगों ने, या डायरेक्शन ऑफ जो है इलेक्ट्रिक करंट, हाँ या तो डायरेक्शन ऑफ चार्ज देख लिया, चार्ज ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज देख लिया. सो the direction of the magnetic field is explained to us by one law. What is that law called? That is called right hand. Right hand. आगे क्या? Right hand what? Thumb rule. Right hand thumb rule means what? Means what? ये कंडक्टर है. Okay डायरेक्शन ये है देखो. Okay डायरेक्शन ये है. So you have a pen or a pencil. तो आप जो राइटिंग टिप है, कंसिडर दैट एज द डायरेक्शन इन विच करंट इज फ्लोइंग. ओके तो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल. सो दिस इज नेगेटिव साइड एंड दिस इज द पॉजिटिव साइड. यू हैव टू होल्ड दिस इन योर राइट हैंड. ओके यू हैव टू होल्ड इट इन योर राइट हैंड. ओके क्या दिख रहा है आप लोगों को, यू हैव टू होल्ड इट इन योर राइट हैंड. ओके आई विल होल्ड दिस अगेंस्ट माई ब्लैक शर्ट. ओके यू विल होल्ड इट इन योर राइट हैंड, और ऐसे करोगे कि थंब जो है विल पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द चार्ज, या डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस. ओके करंट ये वाला डायरेक्शन. ठीक है दिख रहा है आप लोगों को, कैन यू सी दिस, हाँ थंब, एंड आई विल होल्ड इट लाइक दिस विथ माई कर्ल्ड फिंगर्स. So this curled finger will show me the direction of the magnetic field. Direction of the magnetic field. Magnetic field का direction ये है. ओके क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, दैट विल डिफर. इधर से देखोगे तो शायद क्लॉकवाइज दिखाई देगा, ऐसा देखोगे तो, और यहाँ से देखोगे तो शायद आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा. ओके वेदर यू आर ऑब्जर्विंग इट फ्रॉम दिस डायरेक्शन और यू आर टर्निंग एंड यू आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन. ठीक है तो वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल उसके बारे में भी बात करेंगे. आर यू ओके विद दिस? अभी मैं देखो उल्टा करता हूँ, आई टर्न माई बैक टूवर्ड्स योर साइड. तो अभी मुझे राइट हैंड साइड कैसा पकड़ना पड़ेगा, थंब विल बी हियर एंड कर्ल्ड फिंगर हियर. समझ में आ रहा है? तो ये कैसे फ्लो हो रहा है, हाउ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. ओके अगर मैं सर्कल बनाता हूँ,
So arrow will be in this direction, right? In this direction. Magnetic field is in this direction. Are you getting it? देखो इस चैप्टर में 3 लॉ है. वन इज द राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, देन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. ये ऐसा ही नहीं है राइट हैंड लेफ्ट हैंड थंब रूल वगैरह. ओके, सबका अलग अलग यूज़ है, सबका अलग अलग यूज़ है, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस यूज़, और आपको वो याद रखना है. ओके, राइट हैंड थंब रूल यूज़ करते हैं कंडक्टर के लिए. ओके, कंडक्टर के लिए, कंडक्टर के लिए यूज़ करते हैं राइट हैंड थंब रूल. कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना, आई विल यूज़ दिस रूल. इज इट क्लियर? राइट हैंड थंब रूल इज यूज्ड. ओके, किस लिए यूज़ करते हैं? टू फाइंड if current is flowing, if you on the current, okay, switch on करेंगे, टैप की इंसर्ट करेंगे, करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग. ओके, मतलब इन पूरा जो है चार्ज या यूनिट चार्ज. ओके, सो मूविंग चार्ज, मूव तभी होगा जब ये ऑन है. ओके, मूविंग चार्ज और अ कंडक्टर कैरिंग करंट. ओके, उसमें जो है दैट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड, दैट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड. एंड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, दिस राइट हैंड थंब रूल इज यूज्ड. इज इट क्लियर? याद रखो, आप बायट करो, और अभी बायट करो कि कंडक्टर, ओके, ये पेन या पेंसिल हमारा कंडक्टर है, उसको हम लोग राइट हैंड में पकड़ रहे हैं. ओके, तो कंडक्टर के लिए अगले बार कंडक्टर नहीं होगा. जब हम लोग फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल होगा, लेफ्ट हैंड रूल है तो राइट हैंड रूल का ज़रूरत क्या है, क्या फाइंड आउट करने के लिए, वी विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो. आज वही पढ़ना है. कार्डबोर्ड लिया और एक होल किया अस्टर्ड ने, और ये कंडक्टर जो है ना, वी सी इट इज़ इन दिस डायरेक्शन, इसको जो है इस कार्डबोर्ड से आर पार कर दिया. ठीक है, द पार्ट विच यू कांट सी दैट इज बिहाइंड द कार्डबोर्ड. ठीक है, सपोज ओके इफ करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, हाँ सपोज इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, राइट? मतलब क्या है, इट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल. सो दिस इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी एंड दिस इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. तो आयन पाउडर को क्या किया, स्प्रिंकल किया. ओके, आयन पाउडर को क्या किया, स्प्रिंकल किया है. ओके, करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर. ओके, इफ करंट इज नॉट फ्लोइंग यू कांट सी दी ऑब्जर्वेशन. एंड इफ यू जेंटली टैप, ओके, इसको टैप करेंगे, ओके, कार्डबोर्ड को ऐसा टैप करेंगे या तो नीचे से टैप करेंगे. सो व्हाट यू विल सी कि आयन फाइलिंग्स विल रीअलाइन देमसेल्फ, रीअरेंज देमसेल्फ, एंड यू विल एक्चुअली सी, okay, you will actually see the concentric circle with this hole as a center. ये center होगा and you will see the concentric circles. In the examination you can get this diagram to be drawn. हाँ, तो उस वक्त डायग्राम ड्रॉ करने आना चाहिए आप लोगों को, राइट? बट इफ़ यू ड्रॉ ओनली कॉन्सेंट्रिक सर्कल योर डायग्राम इज़ नॉट कंप्लीटेड, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने क्या नहीं बताया, डायरेक्शन नहीं बताया. सो व्हाट डायरेक्शन यू विल शो, देखो ये पेन है, okay, tip is like in this direction. Okay, so thumb will be in this direction, my thumb will be in this direction. दिख रहा है आप लोगों को, my thumb will be in this direction. ठीक है, टिप में, and curled finger are in this direction. Okay, ऐसा fingers घूम रहे हैं, मतलब direction will be like this. Are you getting it? ये घूम कर ये टर्न इधर. Are you getting it? अच्छा, याद रखो, अगर डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव को चेंज करेंगे. ओके, इफ करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम, ओके, टॉप टू बॉटम, तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा. ओके, तो एरोस का डायरेक्शन जो है चेंज हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा. इफ यू रिवर्स द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, ओके, डायरेक्शन ऑफ द करंट, द डायरेक्शन ऑफ दिस विल ऑल्सो चेंज. इज इट क्लियर? अगेन व्हाट वी विल डू, ये दूसरा एक्सपेरिमेंट है, चीज़ों को और थोड़ा कॉम्प्लेक्स करेंगे. अगेन दिस इज अ रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड. This time what I am doing is I am making 2 holes. और इसके अंदर से, ओके, अर्लियर वी सॉ स्ट्रेट कंडक्टर, ओके, और वायर was स्ट्रेट. अभी वायर स्ट्रेट में नहीं है, लूप में. हाँ, शुड आई टेक इट हियर?
नाउ दिस इज माई पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज माई नेगेटिव टर्मिनल, राइट। तो पॉजिटिव टर्मिनल से ओके दिस बिकम्स अ डायरेक्शन ऑफ अ लूप। ऐसे दो चार ये किया, हाँ, और फिर बाहर निकाला, ओके, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को और नेगेटिव टर्मिनल को, ठीक है। नाउ अगेन सेम प्रोसीजर इज डन कि आयरन पाउडर इज स्प्रिंकल्ड ऑन दिस कार्डबोर्ड एंड दिस कार्डबोर्ड इज टैप्ड जेंटली। व्हाट यू विल फाइंड, ओके, ये डायग्राम भी एग्जाम में आता है, दो डायग्राम आते हैं एग्जाम में, प्रीवियस वन एंड दिस वन। तो बीच में आप लोगों के ये अगर जो भी है इसके सेंटर में अ स्ट्रेट लाइन, राइट, अ स्ट्रेट लाइन, then what, then a curve, first curve, second curve, let us take one more curve, then what, semicircles, first semicircle, second semicircle, third semicircle, okay, बस हो गया, या outer semicircle, if it is not clearly visible सीधा आप लोग लाइन ड्रॉ करो। इज इट फाइन। तो ये कॉइल में जितने टर्न करेंगे कॉपर के, ओके, कॉपर, ओके, जैसा ये देखो ये वायर है, हाँ, जितना टर्न किया इसमें, जितना टर्न किया, ओके, जितना ज़्यादा टर्न करोगे उतना ये डेंस होगा कॉन्सेंट्रिक सर्कल, जितना स्ट्रेंथ फैक्टर्स में वो सब आता है। इज इट क्लियर, ओके। यहाँ से स्टार्ट होता है कंपैरिजन। इफ आई टेक अ मैग्नेट, ओके, ये मैग्नेट है, ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर एग्जैक्टली सेम, वो भी ऐसे ही निकलते हैं जैसे ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में निकला था, सेम लाइक दिस, हाँ, या स्ट्रेट स्ट्रेट, आर यू गेटिंग इट। चलो 3 वहाँ बनाया तो 3 एंड दिस, हाँ, इफ दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल, सो इट विल कम आउट फ्रॉम नॉर्थ एंड इट विल एंटर इनटू साउथ, हाँ, और अंदर जो है नॉर्थ से आया और ये कंटिन्यूअस है, ओके, कंटिन्यूअस लूप में। आर यू गेटिंग इट। मतलब ये अगर देखेंगे तो ये जो है पोल, ये जो है ये किसके जैसा बिहेव करता है, तो इट स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट। इज इट क्लियर। तो व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग, अगेन सेम, द अमाउंट ऑफ करंट थ्रू द वायर, okay, amount of current through the wire, rheostat is used so that we can alter the rate of the current flowing through a wire, okay। हम लोग करंट को इंक्रीज कर सकते हैं, करंट को डिक्रीज कर सकते हैं, ओके। इफ करंट इज इंक्रीज, द डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल इन द कंपास placed inside the wire will also increase. The strength of the magnetic field is directly proportional to the current. What you have to remember is that इस loop में भी same है, जैसा straight conductor था यहाँ पर भी same है, okay। तो यहाँ पर क्या point है कि if you increase the strength of the current, the strength of the magnetic field will also increase. Is it clear? And second is the radius of a circular wire. तो ये सर्कुलर वायर था, सो वी हैव स्पोकन अबाउट दिस रेडियस 6 सेंटीमीटर होगा तो 3 एंड ऑल। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ओके। मोर रेडियस, ओके, मोर रेडियस लेस विल बी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड विल बी लेस। तो ये लूप जितना छोटा होगा, ओके, अ बिगर फॉर सेम अमाउंट ऑफ करंट यू विल गेट अ स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। इज सेकेंड पॉइंट क्लियर। सो दिस सर्कुलर लूप, इसका रेडियस अगर कम करेंगे तो मोर डिफ्लेक्शन, रेडियस अगर ज़्यादा रखेंगे सो इट शोज अ लेस डिफ्लेक्शन। इज दिस पॉइंट क्लियर। एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन अ सर्कुलर वायर, यहाँ तो एक ही टर्न लिया, बट इफ यू टर्न दिस वायर मोर नंबर ऑफ टर्न्स, ओके, और ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा, नंबर ऑफ टर्न्स, ओके, नंबर ऑफ टर्न्स। कैन यू सी दिस, यहाँ पर देखो नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज़्यादा है, ओके, देयर इट वाज ओनली 1 टर्न बट नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा। यही हमारा अगला पॉइंट है, ओके। यहाँ पर एक ही लूप लिया था, तो जब नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज़्यादा होते हैं देन इट इज़ कॉल्ड अ सोलिनॉइड, सोलिनॉइड, ओके। अगला पॉइंट हमारा सोलिनॉइड के बारे में ही है। बट इफ़ यू इंक्रीज अ नंबर ऑफ टर्न्स, ओके,
अगेन मैग्नेटिक फील्ड विल इंक्रीज, वही सेंटर में कंपास रखेंगे. सो फॉर 2 टर्न्स, ओके, 2 लूप अगर होगा तो मोर डिफ्लेक्शन, 3 लूप होगा मोर डिफ्लेक्शन, 10 लूप होगा इवन मोर डिफ्लेक्शन, 20 लूप्स होगा मोर डिफ्लेक्शन. इज इट क्लियर? अच्छा, इस सेंटर ऑफ लूप में अगर ये लूप है, ओके, और इसके सेंटर में, ओके, ये लूप है, लूप के सेंटर में वी हैव सीन ना स्ट्रेट लाइन था, सेंटर में एक लाइन हम लोगों ने स्ट्रेट बनाया. तो एट अ सेंटर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होता है, नो चेंज, मतलब डिफ्लेक्शन नहीं होगा. मतलब इसके सेंटर से, अगर ये लूप के सेंटर से, ओके, चलो सिंगल ही लूप लेते हैं, फिर बाद में सोलिनॉइड तो देखना ही है. कंपास अगर सेंटर से पास करोगे आप लोग, समथिंग लाइक दिस, ओके, कंपास इधर रखा, इधर रखा, इधर रखा, इधर रखा, ओके, स्ट्रेट लाइन है, तो देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन. जिस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन है सेम इट विल रिमेन इफ यू पास ऑन थ्रू दिस. मतलब सेंटर में जो मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन होता है दैट इज कांस्टेंट. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. बच्चे लोग ये भूल जाते हैं और एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है. ओके, वी विल सी दिस. At the center of a loop, magnetic field appear like a straight line. Okay, we have drawn a diagram so we know it. At the center it is a straight line. At a center it is a straight line. Clear? So these 4 points you need to remember for this loop. Clear? हाँ, और एक पॉइंट बताना है. अगेन दिस पॉइंट, ओके, टीचर्स लोग तो स्कूल में कुछ भी उल्टा पुल्टा पढ़ा देते हैं. ओके, होप सो आपके इसमें ऐसा नहीं होगा. लिसन हियर, मैग्नेट में जैसा पोल होता है, नाउ इफ यू सी दिस, अगर आप लोग ये कंपेयर करेंगे, बहुत ज़्यादा टर्न लेंगे या ये लूप देखेंगे, तो इफ़ यू कंपेयर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो यू विल सी दैट दिस कंपैरिजन इज सेम. ओके, लूप में मैग्नेट ही बन जाता है. तो इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज अगर लूप में घूम रहा है तो यू विल सी दैट कि वो लूप जो है वो मैग्नेट जैसा बिहेव करने लगता है. इफ़ यू ऑब्जर्व द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दे आर आइडेंटिकल. समझ में आ रहा है? और इसमें डिटेल में बात करेंगे व्हेन वी टॉक अबाउट सोलिनॉइड, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. अगर ये लूप है, ओके, ये लूप है, तो एक नॉर्थ पोल होगा और साउथ पोल होगा. हाउ टू आइडेंटिफाई दैट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल? ओके, तो सिंपल बुक में क्या दिया हुआ है, इफ योर टर्न, ओके, कैन यू सी दिस, कैन यू ऑब्जर्व दिस, इधर देखो जरा ध्यान से. दिस टर्न वेदर इट इज क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, इज इट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? ओके, क्लॉक तो हमारा ऐसा घूमता है, क्लॉक हमारा ऐसा घूमता है, राइट, क्लॉक हमारा ऐसा घूमता है, ये उल्टे डायरेक्शन में. तो एंटी क्लॉकवाइज इज नॉर्थ. अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन एग्जाम में आएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ओके, लूप में घूम रहा है करंट, ओके, या चार्ज हमारा लूप में घूम रहा है, एंड इफ डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज, तो वो एंटी क्लॉकवाइज वाला जो डायरेक्शन है दैट विल बिकम अ नॉर्थ पोल, राइट. और अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है देन इट बिकम्स अ साउथ पोल. इसको एक्सप्लेन कैसे किया है? नॉर्थ पोल, ये एन के जैसा कुछ लिखा है, एन के जैसा, ओके, एरो एंड एरो. सो दिस इज विच डायरेक्शन, दिस इज विच डायरेक्शन, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ओके, और अगर आप लोग एस देखोगे, साउथ पोल, ओके, ये ऐसा. सो विच इज दिस डायरेक्शन, लाइक दिस, दिस इज लाइक क्लॉक, दिस इज क्लॉकवाइज. ओके, इज इट फाइन? अब देखो, लिसन हियर, मैंने क्या किया है, वायर लिया है और इसको ऐसे वाउंड किया है, ओके, ऐसे उसको लपेटा है गोल. ओके, सी दिस डायरेक्शन, ये ऐसे डायरेक्शन में लपेटा है. ओके, सो व्हाट विल हैपन, वन एंड, इधर देखो, वन एंड मैं यहाँ से देखूंगा लाइक दिस, ऐसे देखूंगा, दूसरा एंड मैं यहाँ से देखूंगा. आर यू गेटिंग इट? आर यू गेटिंग इट? ओके, वन इज नॉर्थ पोल एंड वन इज साउथ पोल. मैं अगर इधर से देखता हूँ, ये ऐसा वाइंडिंग किया, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. ओके, मैंने ये ऐसा जो है वाइंडिंग किया, ऐसा गोल गोल लपेटा ऐसा. ओके, विच डायरेक्शन इज दिस, विच डायरेक्शन इज दिस? Clockwise. क्लॉकवाइज. सो विच पोल इज दिस, विच पोल इज दिस? क्लॉकवाइज, मतलब ये साउथ पोल है, दिस डायरेक्शन. ओके, दिख रहा? मैंने ये, अब मैं क्या करता हूँ, इस टर्न से यहाँ से निकलता हूँ एंड आई कम टू दिस साइड. अब मैं इधर से देखता हूँ. ओके, समझ में आ रहा ना? ये वायर है, सी, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ये ऐसे ऐसे, ये डायरेक्शन है इसका, ये डायरेक्शन है. ओके, यहाँ से एक साइड से टर्न किया और दूसरे साइड से बाहर निकाला. ओके, सी, व्हेन आई एम लुकिंग फ्रॉम हियर, ऐसे था,
हाँ, दिस इज क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज, ऐसा है. बट व्हेन आई कम टू दिस साइड, ये मेरे लिए एंटी क्लॉकवाइज बनता है. तो यहाँ से क्लॉकवाइज है, तो दिस इज क्लॉकवाइज, दिस इज साउथ. एंड व्हेन आई सी फ्रॉम हियर, टर्न इज एंटी क्लॉकवाइज, सो दिस इज नॉर्थ. एंटी क्लॉकवाइज इज नॉर्थ, क्लॉकवाइज इज साउथ. क्या समझ में आ रहा है? बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग क्या करते हैं, बाय ऐड करके रखते हैं. ओके, एंटी क्लॉकवाइज इज नॉर्थ, क्लॉकवाइज इज साउथ. लेकिन रियल लाइफ अगर आप लोग एक्सपेरिमेंट करने के लिए लैब में जाओगे और ऐसा टर्न करोगे, ओके, तो ये कंडक्टर है, ओके, इसके अराउंड अगर वाइंडिंग किया वायर को, तो विच इज़ नॉर्थ पोल एंड विच इज़ साउथ पोल, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. ओके, तो वायर जब घुमाते तो एक बार ऐसे देखो और एक बार ऐसे देखो, देन सी द डायरेक्शन ऑफ वाइंडिंग, यू विल कम टू नो विच इज़ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. इज इट क्लियर? सो वेरी इंपॉर्टेंट है. अभी तक जो पढ़ा था, दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 6 पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर? कैन वी कंटिन्यू? देखो, सोलिनॉइड एक ही लूप देखा था, यहाँ पर एक ही लूप देखा था. नाउ सी सो मेनी लूप. दिख रहा है आप लोगों को यहाँ? कैन यू सी दिस? वायर को देखो कैसे टर्न किया, लाइक दिस, ऐसे टर्न करके लाया. व्हेन यू सी टर्न फ्रॉम दिस साइड, ओके, आपको एंटी क्लॉकवाइज टर्न दिखाई देगा. व्हेन यू गो एक्चुअली ऐसा ही कुछ पकड़ो, ओके, अंदर कुछ भी पकड़ो, यूज़ योर पेन, जैसे मैंने मार्कर में वायर को लपेटा था, सेम वे ऐसे एक वायर में थ्रेड लो या कुछ भी लो, ओके, एंड वाइंड इट लाइक दिस, वाइंड करके यहाँ निकाल कर लेकर आओ. सो व्हेन यू सी फ्रॉम दिस हियर, इफ टर्न इज एंटी क्लॉकवाइज, तो दिस पोल विल बिकम अ नॉर्थ पोल. और यहाँ से देखोगे और टर्न अगर क्लॉकवाइज दिखाई देगा, यू हैव टू चेंज द पोजीशन. यहाँ से फिर आपको इधर आकर देखना है. पहले यहाँ से देख रहे थे, देन यू विल टर्न एंड यू विल सी, लुक इट फ्रॉम हियर, राइट. और आपको पता चलेगा, एक बार आपको क्लॉकवाइज दिखाई देगा और एक बार एंटी क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज मीन्स साउथ और एंटी क्लॉकवाइज मीन्स नॉर्थ. इज इट क्लियर? ओके, फोर्थ वाले पार्ट में, okay, solenoid. What is solenoid? Solenoid. So take anything, okay, एक piece of paper ले लो cylindrical form में, उसको roll करो like a cylindrical form, or take a soft iron, or take any cylindrical plastic or your water bottle or anything, okay, और इसमें क्या करो, कॉपर का वायर जो है, कॉपर का वायर में भी इंसुलेटेड, इसको क्या करो, इसको वाइंडिंग करो, कनेक्टेड टू अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड कनेक्टेड टू अ नेगेटिव टर्मिनल. इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगे, ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दैट विल बी एग्जैक्टली सेम लाइक अ मैग्नेट. ओके, दैट विल बी एग्जैक्टली लाइक अ मैग्नेट. हाँ, वो ये मैग्नेट के जैसे ही जो है वो बिहेव करेंगे. ठीक है, जस्ट लाइक अ मैग्नेट, हमारे मैग्नेट के जैसा. Suppose this is north and this is south, so magnetic field lines will be like this. 1, 2, 1, 2, straight, half. समझ में आ रहा है? So this solenoid behave like a electromagnet. Okay, it behaves like a electromagnet. And electromagnet, what are the uses of the electromagnet? Do you remember? एक तो था इलेक्ट्रिक बेल, और बताओ क्या था? एटलीस्ट 4 नेम्स यूजेस वी विल राइट. पहले इंस्ट्रूमेंट बताओ जिसमें यूज होता है. इलेक्ट्रिक बेल, देन इलेक्ट्रिक स्पीकर्स, ओके, टू रिमूव, टू लिफ्ट, ओके, स्क्रैप. कौन सा? मैग्नेटिक स्क्रैप, ओके, जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, मैग्नेटिक स्क्रैप. और कौन सा? और एक बताओ. एक ये था ना, लोडिंग फर्नेस इन, लोडिंग आयन इन द फर्नेस, लोडिंग आयन इन द फर्नेस. अच्छा, ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में ये 2 हो गए. कैन यू नेम 2 मोर? एक तो टेलीग्राफ था. व्हाट वाज नेक्स्ट? इन माइक्रोफोन. स्पीकर और माइक्रोफोन तो वैसे सेम. माइक, हाँ, माइक और स्पीकर अलग अलग होता है. हाँ, माइक में और स्पीकर में. ओके, एटलीस्ट ये 4 नाम याद रखना, एंड बाकी ये 2 एक्स्ट्रा. ठीक है, दीज आर द यूजेस.
Now what is the difference? Again ये भी लास्ट में towards the end of the class we have seen the difference between solenoid on the magnet. इसका strength जो है, तो ये आर्टिफिशियल मैग्नेट जो होता है उसके बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं ओवर अ परमानेंट मैग्नेट. ओके, दिस इज टेम्पररी मैग्नेट. सो वेन एवर वी वॉन्ट टू यूज लाइक अ मैग्नेट हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन ये परमानेंट है. देन क्या, इसका स्ट्रेंथ जो है, ओके, इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका स्ट्रेंथ वेरी कर सकते हैं, कैन बी चेंज्ड. और ये स्ट्रेंथ को चेंज नहीं कर सकते, राइट ना. और इसका पोलैरिटी कैन बी रिवर्स्ड. पोलैरिटी, ओके, नॉर्थ पोल और साउथ पोल कमिंग आउट. सपोज ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ओके, पॉजिटिव टर्मिनल, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव. बट हम लोगों ने इसको चेंज कर दिया वायर्स को या इसको, तो यू विल सी दैट, ओके, कि इसका पोलैरिटी चेंज हो जाएगा. पोलैरिटी कैन बी चेंज्ड. यार पोलैरिटी कैन नॉट बी चेंज. अगर ये सॉफ्ट आयरन लेते हैं और अगर उस पर कॉपर वाइंडिंग करते हैं एंड इफ यू पास अ करंट देन सोलेनॉइड बिकम्स अ टेम्पररी मैग्नेट. टेम्पररी मैग्नेट है, जब चाहिए तब मैग्नेट जैसा यूज़ करो, जब नहीं चाहिए तब स्विच ऑफ करो इसका मैग्नेटिज्म. सो यूजफुल फॉर अस. इसका स्ट्रेंथ इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं. ओके, सो अगेन इसका यूजफुलनेस और बढ़ गया. पोलैरिटी भी चेंज कर सकते हैं. सो देर आर सो मेनी एडवांटेजेस ऑफ दिस ओवर द मैग्नेट. सो ये बहुत सारे अप्लाइंसेस जो होते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, उसमें ये यूज़ होता है. अगर इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस पूछा तो राइट इलेक्ट्रिक बेल, टेलीग्राफ, स्पीकर, माइक्स. हाँ, और बाकी यूजेस पूछा, जनरल यूजेस भी अदर देन अप्लाइंसेस, सो यू कैन राइट सम अदर यूजेस ऑल्सो, राइट.